हाँ जी बच्चों, ਆਪਾਂ पिछले लैक्चरस ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰਸ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ठीक है, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਇਨ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1932 ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ठीक है, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ 1932 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਨ ਕੇਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨ ਕੇਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਇਨ ਕੇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੋਲੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6% ਵਿਆਜ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੋਏਗਾ 1932 ਵਾਲਾ, 1932 ਦੇ ਐਕਟ ਵਾਲਾ। 1932 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਲੋਨ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ 6% ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲਰੀ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ 2000 5000 10000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਨ ਕੇਸ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ 1932 ਦਾ ਐਕਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? 1932 ਦਾ ਐਕਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 1920 ਉਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂ ਰੈਮਨੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਐਕਸ ਐਂਡ ਵਾਈ ਸਟਾਰਟਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਅ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਔਨ 1/4/2019 देयर ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਸੇਮ ਡੇ ਵਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲਗਾਈ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਐਂਡ ਵਾਈ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲਗਾਈ ਹੈ 2 ਲੱਖ। ਐਕਸ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਾਈ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਈਅਰ ਔਨ 1/12/2019 ਔਰ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰੁਪੀਜ਼ 50,000 ਟੂ ਫਰਮ ਐਜ਼ ਲੋਨ। 50,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਾਈ ਨੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਿਆ ਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਦ ਫਰਮ ਫਾਰ ਦ ਈਅਰ ਐਂਡਡ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਵਰ ਰੁਪੀਜ਼ 40,000 ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ 40,000 ਰੁਪਈਆ। ਬਟ ਦੇਰ ਵਰ ਸਮ ਡਿਸਪਿਊਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਐਕਸ ਕੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਈ ਕੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਐਕਸ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਸਹੀ ਹੈ। देखो, एक्स ने क्लेम किया ही शुड बी पेड सैलरी ऑफ रुपीज़ 2000 पर मंथ। ज़्यादा टाइम लगाना होना ना बिजनेस के विच, वो कहना मैनू 2000 रुपया महीना दिता जाए सैलरी के तौर पर। तो हुण तुसीं दसो भी एक्स सही है इत्थे कि गलत है? एक्स क्योंकि पार्टनरशिप डीड दे विच कुछ नहीं मैंशन तो नियम किहड़े लागू होणगे 1932 एक्ट वाले। ठीक है ना, हुण एक्ट दे अकॉर्डिंग आ एंड ते तुहानूं दस्सिया सी सैलरी टू पार्टनर्स मतलब पार्टनर्स नूं कोई सैलरी नहीं दी जाएगी इन केस पार्टनरशिप डीड दे विच नहीं लिखिया। हुण पार्टनरशिप डीड तां लिखी नहीं तो इसलिए एक्स का जिहड़ा ये वाला क्लेम है वो 100% ही रॉन्ग है।
गलत कर दो, एक्स गलत है इत्थे, इत्थे की है एक्स गलत है। नैक्सट आ गया बेटा प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ कैपिटल। हुण एक्स ने पैसे किन्ने लगाए ने, एक्स ने पैसे लगाए ने 3 लाख, वाई ने किन्ने पैसे लाए ने, वाई ने 2 लाख। एक्स की कहता है, एक्स ये गल कह रहा है भी मैं पैसा ज़्यादा लगाया, मैं पैसा ज़्यादा लगाया, मैनू उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा दो। हुण तुसीं दसो एक्स सही है कि नहीं। हुण वाई की कह रहा है, वाई की कहता है, वाई वो कहता प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, वाई कहता इक्वली होएगा, प्रॉफिट बराबर वंडिया जाएगा। एक्स कहता मैनू जे पैसे ज़्यादा लाए ना तो प्रॉफिट भी ज़्यादा दो। पर जे उन्हां व्यक्तियों ने, जे उन्हां पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड दे विच ये गल लिखी हुंदी भी 3 लाख के हिसाब नाल उन्होंने प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, 2 लाख के हिसाब नाल बाई नूं प्रॉफिट घट मिलेगा, तो फिर ठीक सी। हुण उन्होंने पार्टनरशिप डीड दे विच पार्टनरशिप डीड तो लिखी ही नहीं, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 जिहड़ा वाई सही है। कौन सही है, वाई सही है, उन्होंने इक्वल प्रॉफिट ही दिता जाएगा। इत्थे कौन है, वाई सही है तो एक्स जिहड़ा वो गलत है। ओके नैक्सट बेटा आ जाता है हुण एक्स का अगला क्लेम की है, इंटरस्ट ऑन लोन इज़ टू बी पेड एट द रेट 6% पर एनम। हुण लोन किन्ने दिता सी, लोन दिता सी आ देखो ना वाई, वाई एडवांस ₹50,000 टू फर्म, वाई ने फर्म नूं लोन दिता, वाई ने फर्म नूं लोन दिता, तो एक्स की कहता है भी तेनों ब्याज कितनी दी जाएगी 6%। तो वाई की क्लेम कर रहा है, इधर देखो इंटरस्ट ऑन लोन इज़ टू बी प्रोवाइडेड एट 9% पर एनम। उन्हें लोन दिता, वो कहता मैं तो 9% लावांगा, बट एक्स की कहता है, एक्स कहता है तेनों 6% मिलना चाहिए। हुण आ गया ना, इत्थे देखो आपां की कीता सी, इंटरस्ट ऑन लोन 6%। जे पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी हुई तो लोन ते ब्याज हमेशा ही 6% दी जाएगी, लोन ते ब्याज कितनी दी जाएगी 6% दी जाएगी। इस थां ते आके कौन सही है, इस थां ते आके एक्स जिहड़ा वो सही है और वाई जो है वो गलत है। वाई कौन है, गलत है। नैक्सट बेटा आ जाता है इनके क्लेम सारे हो गए। इधर आ पहला नंबर, दूजा नंबर, तीजा नंबर, इनका पहला नंबर दूजा नंबर हो गया। तीजे नंबर ते वाई की क्लेम कर रहा है इंटरस्ट ऑन एक्सेस ड्राइंग्स टू बी चार्ज एट 12% पर एनम। हुण एक्स ने ड्राइंग्स कीतियां सी, एक्स ने की कीतियां ड्राइंग्स मतलब पैसा वो बिजनेस के विचों कढ़ के लग्या, तो वाई की कह रहा है भी जिहड़ा बिजनेस के विचों पैसा इन्हें कढ़िया उहदे ते 12% के हिसाब नाल मैं ब्याज लवांगा। हुण देखो एक्स वाई सही है कि नहीं सही, गलत है, क्योंकि आपा पहले ही किया है। पॉइंट नंबर 3 देखो इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स जिहड़ा वो इन केस पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी हुई तो कोई इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिता जाएगा। इसलिए इस पॉइंट पर भी वाई है जिहड़ा वो गलत है, वाई है जिहड़ा वो गलत है। हुण देखो इन्हां दे डिस्प्यूट्स सारे हल हो गए, आपां नूं पता लग गया भी किहड़ा किहड़ा सही है, किहड़ा किहड़ा गलत है, किहड़ा किहड़ा किहड़े किहड़े पॉइंट ते सही है, किहड़े किहड़े पॉइंट ते गलत है। हुण रह की गया, आपां रह गया प्रॉफिट। आ की रह गया प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना सी बेटा 40,000 सी ना। हुण आपां वंडीए इनूं भी भला प्रॉफिट किवें वंडिया जाएगा। हुण आप पहला की +1 की करते होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते होंगे ना। हुण इत्थे +2 आके की हुंदा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब की हुंदा है भी ये प्रॉफिट एंड लॉस तो अगला स्टैप है, प्रॉफिट एंड लॉस तो अगला स्टैप है। प्रॉफिट एंड लॉस तो बेटा पता लग गया भी उन्होंने प्रॉफिट कितना होया, उन्होंने कितना प्रॉफिट होया। हुण प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो की हुंदा है भी वो प्रॉफिट नूं वंडणगे किस हिसाब नाल, उस प्रॉफिट नूं वो वंडणगे किस हिसाब नाल, उन्होंने की कहंदे ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हुण वेखो ना उन्होंने प्रॉफिट टोटल आपां स्टेटमेंट खैर नहीं हैगी हुण उस प्रॉफिट नूं उन्होंने प्रॉफिट हैगा कितना सी 40,000, प्रॉफिट 40,000 सी। 40,000 के विचों बेटा पार्टनर्स पहला जड़ा कुछ उन्होंने मिलना है वो मिलेगा। इंटरस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने है ही नहीं सी, ड्राइंग्स है ही नहीं सी, कुछ भी नहीं, डीड नहीं लिखी हुई सी। डीड दे विच इक्को ही चीज़ 1932 दे विच इक्को ही चीज़ सी भी उन्होंने एक ना वो देना सी अपना इंटरस्ट ऑन लोन। लोन कितना लिया सी उन्हें 50,000 रुपया लोन सी उन्हें दिता सी जो कंपनी नूं ते
किन्नी तरीक नूं दिता सी 1 दसंबर नूं। तुसीं स्टेटमेंट वेखो पिछे जाके 1 दसंबर नूं। दसंबर दे विच वेखो दसंबर दा महीना, जनवरी दा महीना, फरवरी दा महीना ते मार्च दा महीना, टोटल महीने किन्ने हो गए 4। ते ब्याज किन्नी देनी है 6%। 6/100 गुणा 4/12। 12 देखो ना बेटा, 2 जीरो नाल 2 जीरो कट्टे गए, 6 दूनी 12, कितना आ गया 1000 रुपये। 1000 रुपया बेटा उन्होंने वाई नूं की देना पैना है, उन्होंने जिहड़ा उन्हें लोन दिता सी उहदे ते ब्याज। हुण ब्याज देण तो बाद जिहड़ा बाकी बचिया प्रॉफिट उही आपस में वंडणगे ना। ब्याज दिती उन्होंने लोन ते ब्याज 1000 रुपया गया, आ देखो 1000 रुपया गया, बाकी कितना पैसा बच गया 39000 रुपया। हुण इत्थे लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना 39000 रुपया। ये कितना बचिया 39000 रुपया। तो हुण ये वंडना किवें है उन्होंने इक्वल, दोवां ने वंडना किवें है इक्वल। बाय और 2 आएगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट किंदे एक्स दी कैपिटल ते वाई दी कैपिटल। हुण 39000 नूं इक्वल वंडना है, 39000 बटा 2 1 19,500 एक्स नूं मिलेगा तो 19,500 किनू मिलेगा वाई नूं। टोटल कितना हो गया 39,000। कितना हो गया 39,000। ठीक है ना, देखो 39,000 हो गया। ओके, इस तो बाद 39,000 रुपये आपस में उन्होंने इक्वल वंड लिया। ठीक है, हुण नैक्सट क्वेश्चन आप करते हैं।